سورہ احزاب کی آخر رکوع میں اللہ نے فرمایا یہ ظلم ہے، ظلم فاعول کے وزن پر ہے، اس میں مبالغہ، یعنی بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ میں نے ایک امانت تم کو دی تھی، تم نے امانت کو ہدیہ سمجھ کے ہضم کر لے۔ ارے امانت کی معنی تو یہ ہے کہ تم کو وہ امانت اقوالوں کے پاس پہنچانا چاہیے تھا، اب تم خود ہضم کر لے، خود عمل بھی نہیں کرتے، دوسرے کو پہنچاتے بھی نہیں ہو، تم ظالم نہیں ہو، ظلم ہو۔ پڑھو آئے اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا۔ آسمان، زمین، سارے پہاڑ پروت نے انکار کر دیا، ہم اس امانت کو اٹھا نہیں سکتے، ہمارے اندر سخت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان کے معنی سارے انسان نہیں ہے، یہ الف لام استغراقی نہیں ہے، یہ الف لام جنسی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ الف لام عہد خارجی، صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس کے اندر حضرت علماء کرام، لیکن اللہ نے آخر میں فرمایا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم نہیں، ظلوم ہے، انہوں نے محرم چھوڑ دی، امت دین سے دور ہو گئی، انہوں نے محرم چھوڑ دی، انہوں نے غفلت برتی، تھوڑی سی غفلت کی اور امت کا بھاری نقصان ہو گیا، امت بہت ساری امت مرتد ہو گئی، انہوں نے محرم چھوڑ دی۔ اور جاہل نہیں کہا، جہول کہا، یہ جاہل مرکب ہے، جاہل مرکب ہے، جاہل نہیں، جاہل مرکب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ تم نے جس امانت کو امانت کے طور پر پہنچانا چاہیے تھا، کیا تم نے اس کو ہدیہ سمجھ کر کے ہضم کر دے؟ اس میں سمجھنا چاہیے، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، میں اپنے خلاف بولتے، میں نے کیا کیا؟ میری غفلت کی وجہ سے بے دینی پھیل گئی۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا غلام غوث ہزاروی، یہ غلام غوث، ان کا ایکلوتا بیٹا، جوان بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دی صرف رات بھی نہیں گزر سکتی، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ غمگین اپنے بیٹے کے لے کر گھر واپس آئے، انہوں نے بستر پر لٹایا بیٹے کو، اور بیٹا بھی سمجھ گیا اب میں مرنے والا ہوں، میرا انتقال ہو جائے گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا، اس میں لکھا فقرع الباب، دروازہ کنڈی کھٹکھٹایا، دستک دی، انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بہت بزرگ عمر رسیدہ آ کر کے رونے لگے، اب کہنے لگے حضرت اللہ نے آپ کو نوازا ہے، علوم الہیہ سے نوازا ہے، علوم نبویہ سے نوازا ہے، لہذا آپ جانتے ہیں ہمارے علاقے میں یہ قادیانی لوگ آ کر کے لوگوں کو قادیانی میں منا رہا ہے، یہ ہمارے نبی سے دور کر رہے ہیں، یہ بے دینی پھیل رہی ہے، لہذا آپ چلیے، آپ ہی ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین پر آپ اس فتنے سے ایمان والوں کو بچا سکتے ہیں۔ فوراً آئے، گھر میں آئے اور اپنے اہلیہ سے یوں کہا میرا بیگ دے، میرا تھیلا، اس کو تھیلا دے دو۔
अरे आम्हाला जैसे अटैची नहीं थी उनके पास, आजकल अटैची पर बहुत बड़ा, अरे बोलो भाई लाख भी नहीं देते, क्या है? हाँ? शान है, हाँ? बल्कि लेदर का लागी लेके करता है, वो शान से करता है। अरे बोलो भाई, इधर क्या था? फायदा दे दो, कुछ कपड़े हैं, लुंगी है, ये सब कर। उन्होंने कहा क्या है? बच्चा मरने वाला है, आप किधर जा रहे हो? उन्होंने कहा कि इधर ये कादियानियत फैल रही है, ये मैं आ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह आप पर रहम फरमाए, कम से कम बच्चे की तजहीज़ तकफीन के बाद आप तस्लीम दे गई। उन्होंने कहा देखो मेरी प्यारी अहलिया, मेरी बीबी, ये तजहीज़ और तकफीन ये फर्ज किफाया है, और लोगों को दीन से जो दूर हो मुर्तद हो रहे हैं उनको इब्तिदाअ से बचाना ये फर्ज ऐन है। या तो मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे ये एहसास है हमारे अंदर, ये एहसास क्या है? हमारे अंदर इस बात की कोई गम और कोई बेकरारी, बेचैनी, इसको बोलते हैं इस्तिराब। कोई इस्तिराब नहीं है, ये चले गए और जाने के बाद जब इन्होंने जाकर सवारी पर बैठ गए, बस पर बैठ गए उधर जाने के लिए, इतने में 8-10 लोग गए, अजी हजरत आपका बेटा का इंतकाल हो गया, कम से कम जनाजा पढ़ा दो, कम से कम जनाजा पढ़ा दो, हम कब्र में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि जनाजा तुम नहीं पढ़ा सकते हो, ये फर्ज किफाया है, और मुझे उधर ईमान वालों को इब्तिदाअ से बचाना है, वो चले उसे। जनाब ऐसा क्या सिखाया उन्होंने? आज हम कहाँ हैं? किस जगह पर हैं? किस जगह पर हैं? ये चले गए, मेहनत की, चंद हफ्ते तक गए, और अल्लाह के फजल से इब्तिदाअ से उम्मत को बचा लिया। अब ये घर वापस आए, बीवी ने पैर पकड़ कर माफी मांगी, ये अच्छा काम किया, आपका बेटा नहीं मरा, वो मरने से पहले बोलने लगे थे, और उन्होंने कहा मेरे वालिद से कुछ सलामत कर दीजिएगा, और मैं खुश हूँ, मैं अच्छी तरीके से था। उन्होंने कहा कब्र किधर दिया? वो कब्रिस्तान गए, और उन्होंने जाकर दुआ किया, या अल्लाह तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ के लिए जो मैंने मेहनत की, इसकी बरकत से इसको जन्नत में वाला खाना अता फरमा दे, या अल्लाह इसको कोई तकलीफ न दे। दूसरे दिन रात को जब सोए तो उन्होंने ख्वाब में देखा, बच्चे ने कहा मेरे कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया, और मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत का खाना भी दर्शन करा। आप क्या करते? नहीं, एक आदमी आ गई ताबीज लेने के लिए, इसमें नहीं कर सकता। अरे बोलो ना भाई, अरे मिलाद आ गया, मैं नहीं कर सकता, पैसा चाहिए मुझे 500 रुपया, 1000 रुपया। अरे बोलो ना भाई, उससे तो नहीं हो गए, नाराज तो नहीं हो गए? अब मौलाना है या मौलाना है? अरे बोलो मौलाना या मौलाना, मौलाना है या मौलाना? हम तो मौलाना है, मौलाना। अरे तुम माल की तकाजे को कुर्बान नहीं कर सकोगे तो दुनिया में दीन जिंदा नहीं रह सकता। तुम ज़राअत की अगर तकाजे को, अरे भाई तुम्हारे पास अगर खेती बाड़ी का मौका आता है तो तुम छुट्टियां लेते हो, मस्जिद से छुट्टी लेते हो, मदरसा से छुट्टी लेते हो। तो अपने दिल में, अपने गिरबान में झांक कर ये देखो, क्या तुम ऐसा कर सकते हो दीन के लिए? हाँ, अपने दुनिया के काम के लिए, ससुराल जाने के लिए, शादी ब्याह के मौके पर तुम छुट्टी ले सकते हो। दीन के काम में तुम मदद नहीं कर सकते। हमारे पास जमातें आती हैं, क्या इस जमातों की तालीम के लिए हम वक्त नहीं लगा सकते? इस जमात की तरबियत के लिए हम वक्त नहीं लगा सकते? 1 घंटा 2 घंटा नहीं दे सकते?
तिलावत कर रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया तीसरा दर्जा है वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात। खैरात ये जमा मुअन्नस सालिम माने की जितने खैर खिलाएंगे। अरे भाई समझे नहीं समझे? हर खैर की लाइन में आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हर खैर की लाइन में आगे बढ़ो। हाँ, वमिनहुम साबिकुम बिल खैरात बिइज़्निल्लाह। और फिर अल्लाह ने उनके लिए सर्टिफाई किया ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। भाई हम तो ये मुंह उसूल की दाल, हम तो इसको बोल भी नहीं सकते, इस मुंह से आपकी नसीहत भी नहीं कर सकते। जब हमने कहानी सुनाई कि मेरे अंदर ये कमी है, हम जानते हैं, हम सुनते हैं, और अल्लाह ने फरमाया हल अताला इंसान हिन मिन अत-तहरी लम यकुन शय'अन मज़कूरा इन्ना खलक़ना इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तलीहि फजअलनाहु समीअन बसीरा। क्या तुम सुनते नहीं हो? इब्तिदा फैलता चला जा रहा है, लोग गुनाहों में मुब्तला हो गए, औरतें ख़वातीन ये बेहया हो गई है, ये बेहिजाब हो गई है, हमारे बच्चे ये दीनी तालीम से महरूम हो रही है। क्या ये सब अखबार तुम सुनते नहीं हो? तुम तुम कभी इसके लिए क्यों है समीअन बसीरन, तुम अपने आंखों से नहीं देखते हो? क्या तुम अंधे हो गए हो? क्या तुम बहरे हो गए हो? किससे कह रहे हैं? अरे बोल रहे भाई, हाँ, सिर्फ कमाई के लिए, सिर्फ बच्चे पालने के लिए? अरे भाई हम समझते परवरिश करना वाजिब है, लेकिन तरबियत करना फर्ज आइन है। अरे बोलो भाई, ना कि दोनों में फर्क नहीं है। परवरिश ये तो वाजिब है, ठीक है, लेकिन तरबियत, हम परवरिश कर रहे खाली, लेकिन तरबियत नहीं कर रहे। अरे भाई मौलाना उमर किधर है भाई? आदमी लगे ये जहां पर दूल्हा नहीं है तो वो खलास, बाराती का कोई दाम ही नहीं। क्यों भाई? क्या मैं चिल्ला रहा हूं? क्यों भाई? मैं नियत करता हूं जब तक जान है, ये जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। गैरत कौमी शरीक नूर ईमानी नहीं, आह मुस्लिम तुझने वदर के मुसलमान ही नहीं। थी कभी तेरी रवानी मौत दरिया की तरह, अब वो चश्मा है कि जिसमें नाम का पानी नहीं। थी कभी तेरी रवानी मौत दरिया की तरह, अब वो चश्मा है कि जिसमें नाम का पानी नहीं। हालत क्या है? ये हालात बयान कर रहे शायद। तेरे बच्चे हो हमारे कुफ्र के हल्के बदोहर, ये हमारे मुसलमान लड़के, ये काफिर बन रहे हैं, ये मुल्हिद बन रहा है, ये नास्तिक तहरिया बनता चला जा रहा है, और मैं अपना कमाई लेकर बैठा हूँ, अपने परिवार लेकर बैठा हूँ। मैं क्या करूँ? क़यामत में क्या दिखाऊंगा? तेरे बच्चे हो हमारे कुफ्र के हल्के बदोहर, ये हाल है मुस्लिम, ये हाल देखकर तुझे हैरानी नहीं? तेरे बच्चे हो हमारे कुफ्र के हल्के बगोश, हाँ? ये इस हाल मुस्लिम पर तुझे हैरानी नहीं? आखिर में इल्तिजा कर लेता हूँ, दरखास्त पेश करता हूँ, दस्ता गुजारिश करता हूँ, सर झुका, सजदे में जा, फिर तुम्हारी मान। कौन सी बातें तेरी अल्लाह ने मानी नहीं? अल्लाह मानने के लिए तैयार رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني سمعني ولا عيني